ಆರ್ಎಎಫ್ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಅಮಿತ್ ಶಾ ರಿಂದ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬುಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿ ಆರ್ಎಎಫ್ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಯಿತು. ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಭದ್ರಾವತಿ ಹೊರವಲಯದ ಬುಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಇಲಾಖೆ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ರಿಂದ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಿಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಕ್ಷಿಪ್ರ ಕಾರ್ಯಪಡೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ಬೆಟಾಲಿಯನ್ ಕಟ್ಟಡ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭದ್ರಾವತಿ ಹೊರವಲಯದ ಬುಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ನೆರವೇರಿಸಲಾಗಿರೋದು. ಹೀಗಾಗಿ ಅಮಿತ್ ಶಾ ರಿಂದ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆಯನ್ನ ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು. ಕೇಂದ್ರ ಕ್ಷಿಪ್ರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಪಡೆಯ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನ ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ನೆರವೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವೀಗ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಆರ್ಎಎಫ್ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಅಮಿತ್ ಶಾ ರಿಂದ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬುಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿ ಆರ್ಎಎಫ್ ಘಟಕದ ನಿರ್ಮಾಣ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನ ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ನೆರವೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು. ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭದ್ರಾವತಿ ಹೊರವಲಯದ ಬುಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿ ಆರ್ಎಎಫ್ ಘಟಕವನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಇದರ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇವತ್ತು ನೆರವೇರ್ತಾ ಇದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಇಲಾಖೆ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಈ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಿಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಷಿಪ್ರ ಕಾರ್ಯಪಡೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ಬೆಟಾಲಿಯನ್ ಕಟ್ಟಡದ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭದ್ರಾವತಿ ಹೊರವಲಯದ ಬುಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೆರವೇರಿತು. ಇನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದರು. ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ ಅಮಿತ್ ಶಾ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರವಾಸ 2 ದಿನಗಳ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರವಾಸ 4 ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಪ್ರವಾಸದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು, ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಮತ್ತು ಬೆಳಗಾವಿ 4 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಭಾಗಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರು HL ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದಂತಹ ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ನೇರವಾಗಿ ಭದ್ರಾವತಿಗೆ ತೆರಳುತ್ತಾರೆ. ಸಿಎಂ ಬಿಎಸ್ವೈ ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಥ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಭದ್ರಾವತಿಗೆ ತೆರಳಿ ಭದ್ರಾವತಿಯ ಬುಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆಗೆ ಚಾಲನೆಯನ್ನ ನೀಡ್ತಾರೆ. ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ನೆರವೇರಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. ನಾವೀಗ ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ದೃಶ್ಯ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಭದ್ರಾವತಿಯ ಬುಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿ ಆರ್ಎಎಫ್ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ನೆರವೇರಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವೀಗ ದೃಶ್ಯವನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕೇಂದ್ರ ಕ್ಷಿಪ್ರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಪಡೆಯ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ಬೆಟಾಲಿಯನ್ ಈ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ನೆರವೇರಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಭಾಗಿಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗ್ತಾರೆ. ನಂತರ ವಿಧಾನಸೌಧದ ಬ್ಯಾಂಕ್ವೆಟ್ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ವರ್ಚುವಲ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ 3 ವರ್ಚುವಲ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಭಾಗಿಯಾಗ್ತಾರೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ವಸತಿ ಗೃಹಗಳನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕೋರ್ ಕಮಿಟಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರು ಭಾಗಿಯಾಗ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಅದಾದ ನಂತರ ನಾಳೆ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಮತ್ತು ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಪ್ರವಾಸವನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಅಮಿತ್ ಶಾ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರವಾಸ ತೀವ್ರ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ನೆರವೇರಿಸ್ತಾರೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಚಾರ. ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಭೇಟಿ ಬಳಿಕವೇ ಖಾತೆ ಹಂಚಿಕೆ ಅಂತ ಈಗಾಗಲೇ ಸಿಎಂ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅಮಿತ್ ಶಾ ರಾಜ್ಯ ಭೇಟಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಜೊತೆಗೆ ಏನ್ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತೆ, ಸಿಎಂ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನ್ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸ್ತಾರೆ, ಖಾತೆ ಹಂಚಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಖಾತೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಈಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಮಿತ್ ಶಾ ರಾಜ್ಯ ಭೇಟಿ, ರಾಜ್ಯ ಪ್ರವಾಸ ಏನಿದೆ ತೀವ್ರ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗೋದಕ್ಕೆ, ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ನೆರವೇರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅಮಿತ್ ಶಾ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಖಾತೆ ಹಂಚಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆಯೂ ಕೂಡ ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೂತನವಾಗಿ ಸಚಿವ ಪಟ್ಟ ಅಲಂಕರಿಸಿರುವಂತಹ ಸಚಿವರಿಗೆ ಯಾವ ಖಾತೆ ಸಿಗಬಹುದು ಅನ್ನುವಂತಹ ಕುತೂಹಲ ಗರಿಗೆದರಿದೆ.
और अब आप सभी की जोरदार तालियां बजाएं। कहा जाता है कि जब कोई धरती फसल के लिए सींची जाती है तो वो अन्न की सुरक्षा देती है, लेकिन जब एक धरती जवानों के लिए सींची जाती है तो वो जन जन की सुरक्षा देती है, देश की रक्षा देती है। जोरदार तालियां बजाएं आप सभी की शुभकामनाएं के लिए। सीआरपीएफ का गौरव बढ़ाती ये आधारशिला जो आज माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के शुभ हाथों द्वारा रखी गई है। और अब शिलापट्ट का अनावरण ಆರ್ಎಎಫ್ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಅಮಿತ್ ಶಾರಿಂದ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು. ಬುಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿ ಆರ್ಎಎಫ್ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆಯನ್ನ ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭದ್ರಾವತಿ ಹೊರವಲಯದ ಬುಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಇಲಾಖೆ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಆರ್ಎಎಫ್ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ಇನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಿಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಕ್ಷಿಪ್ರ ಕಾರ್ಯಪಡೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ಬೆಟಾಲಿಯನ್ ಕಟ್ಟಡದ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದು. ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭದ್ರಾವತಿ ಹೊರವಲಯದ ಬುಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಬುಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿ ಆರ್ಎಎಫ್ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು. ಇನ್ನು 2 ದಿನಗಳ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅಮಿತ್ ಶಾ ರಾಜ್ಯ ಭೇಟಿ ತೀವ್ರ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಭಾಗಿಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 4 ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಭಾಗಿಯಾಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ये शिलापट्ट 97 कार्यबल भवन के लिए। और अब हम गणमान्य व्यक्तित्व का यहाँ मंच पर अभिवादन करते हैं आप सभी की जोरदार तालियों के साथ। ಆರ್ಎಎಫ್ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಅಮಿತ್ ಶಾರಿಂದ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು. ನಾವೀಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆರ್ಎಎಫ್ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಬಿಎಸ್ವೈ ಕೂಡ ಸಾಥ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರಾಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಹಾಗೆ ಸಚಿವ ಕೆಎಸ್ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಕೂಡ ಆಗಮಿಸಿರುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. एक बार पुनः मैं शिल्पा भावना आप सभी को सादर प्रणाम करती हूँ और 97वें दाहिनी ध्रुव कार्यबल के इस भूमि पूजन एवं शिलान्यास समारोह में ಅಮಿತ್ ಶಾ ಜೊತೆಗೆ ಸಿಎಂ ಬಿಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಹಾಗೆ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಕೂಡ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಕೂಡ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗಕ್ಕೆ ಡಿಸಿಎಂ ಕಾರಜೋಳ ಹಾಗೆ ಈಶ್ವರಪ್ಪ, ಸಂಸದ ರಾಘವೇಂದ್ರ, ಡಿಸಿಎಂ ಅಶ್ವಥ್ ನಾರಾಯಣ್ ಅಮಿತ್ ಶಾಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಕೋರಿದ್ರು. ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ
देश के गृह मंत्री परम आदरणीय श्री अमित शाह जी, कर्नाटक के मुख्यमंत्री श्री BS विशिष्ट अतिथिगण, यहाँ पर पधारे अतिथिगण और देश भर से विभिन्न माध्यमों से जुड़े हमारे बंधुगण, CRPF के परिवारजन, मीडिया बंधुओं, मैं आप सभी का इस समारोह में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सबकी उपस्थिति से ये पल निसंदेह पल्लवित एवं पुष्पित हुए हैं और विशेषकर हमारे मुख्य अतिथि केंद्रीय गृह मंत्री भद्रावती के आंचल में आपने हमें आश्रय दिया। नमस्कार आप भद्रावती। We welcome you all from the core of our heart. स्वतंत्रता के तुरंत पश्चात लौह पुरुष सरदार पटेल ने CRPF को एक नई पहचान दी और उनके द्वारा दी गई फौलादी घुट्टी का ही ये परिणाम है कि इस फौज ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। राष्ट्र रक्षा हो, किसी भी विषमता से जूझना हो, लोक व्यवस्था कायम करनी हो, इस बल ने अपना लोहा प्रमाणित किया है। 2200 से अधिक जाबाजों ने देश के लिए कुर्बानी दी है। उन शहीदों को हम नमन करते हैं और उन शहीदों में 59 शहीद 69 जो मार्टियर्स हैं वो कर्नाटका को बिलोंग करते हैं और उसमें से 5 शहीद शिवमोगा जिले से बिलोंग करते हैं। यह एक बहादुर जिला है। समस्त CRPF परिवार आपको नमन करता है। CRPF has upheld the values that were infused by the Iron Men of the country. RPF एक विशिष्ट बल है। ये नॉन लीथल मीन्स से शांति स्थापित करता है। ये पीपल फ्रेंडली है, जेंडर सेंसिटिव है। इसमें हमारी महिला योद्धा भी कंधे से कंधा मिलाकर काम करती है। यही एक न्यूट्रल फोर्स है जो कि सभी राज्यों में एक साथ स्वीकार्य है। सभी राज्य CRPF और RAF की मांग करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भी RPF ने अपनी एक पहचान बनाई है। इन सब के चलते 1992 में 10 बटालियन के इस बल ने वो महारत हासिल की कि भारत सरकार ने इसको बढ़ाकर के 15 किया और उसी के चलते आज 1 बटालियन शिवमोगा में स्थापित हो रही है। वी आर ग्रेटफुल फॉर दिस टू द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, इन पर्टिकुलर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। हम उनके आभारी हैं कि उन्होंने हमें यहां भूमि आवंटन की। आपने केवल हमें रहने के लिए ही जगह नहीं दी है मान्यवर, आपने हमें अपने दिलों में स्थान दिया है। उसके लिए पूरा CRPF परिवार आपका शुक्रगुजार है। आज के कार्यक्रम की एक और विशेषता है और वो यह है कि स्वतंत्रता के साथ CRPF को एक नई पहचान सरदार पटेल ने दी। 73 वर्ष की इस हमारी यात्रा में हमने राष्ट्र सेवा, आंतरिक सुरक्षा और जन सहयोग के नए आयाम स्थापित किए हैं। उन सब अनुभवों को सचित्र वर्णित करती एक पुस्तक का लोकार्पण आज हमारे गृह मंत्री आपके समक्ष करेंगे। लौह पुरुष के आशीर्वाद को हमने फलीभूत किया है और उसके चलते ये बल कहां तक परिपक्व हुआ, ये आज हम केंद्रीय गृह मंत्री जी के कर कमलों से आप सबों के सामने आवेदन स्वरूप प्रस्तुत करेंगे। यह हमारे प्रत्येक कार्मिक के लिए गर्व का क्षण होगा। दिस इज योर फोर्स, वी आर एट योर सर्विस। ये आपका बल है, हम आपकी सेवा में हैं। एंड वी आर फुली अवेयर दैट द सिक्योर्ड एनवायरमेंट इज इंस्ट्रूमेंटल फॉर ग्रोथ एज वेल एज ईज ऑफ लिविंग फॉर द सिटीजन्स। ये विकास में भी सहायक होगा और प्रत्येक आदमी के जीवन यापन में भी सहूलियत प्रदान करेगा। हमारे गृह मंत्री जी ने सभी बलों को नेशनल मिशन से जोड़ा है और विगत वर्ष को
मानवीय संवेदनाओं का वश घोषित करते हुए वो बलों को मानवीय संवेदनाओं का वश घोषित करते हुए वो बलों को जनता के और भी सामूहिक कार्य हैं उनमें प्रगाढ़ता पैदा की है। हम मुख्यमंत्री जी ने कि उन्होंने हमें ये मौका दिया और ये कार्यक्रम आज यहाँ पर सफलतापूर्वक संपादित हो रहा है। आप सभी का आशीर्वाद हमें प्राप्त है। We are also grateful to the media who will be taking across the country all the messages emanating from this dais today. हम सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। वंदनेगलु, जय हिंद, जय कर्नाटका। औपचारिक स्वागत स्वरूप हम गृह मंत्री जी से अनुरोध करेंगे कि वे आपके निमित्त और जितने भी लोग मीडिया के माध्यम से जुड़े हैं उनके निमित्त और मंच पर जितने लोग आसीन हैं उनके निमित्त एक तुलसी का पौधा स्वीकार करके हमें अनुग्रहित करें। हमारे शास्त्रों में वैसे भी कहा ही गया है कि सस्य शुभम भवति, पौधे शुभ का प्रतीक होते हैं। तो ये प्रतीक हम केंद्रीय गृह मंत्री जी को अपनी तरफ से ये संबोधित कर रहे हैं। और आज क्योंकि आप स्वयं यहाँ पर इस शुभ कार्य के लिए पधारे हैं, तो हमारे जो सभी भाई बहन यहाँ सामने बैठे हैं उनकी तरफ से मैं साहब से जरूर कहना चाहूंगी कि मदी सुवा कई गलिंदा स्वागता। हम सभी हाथ जोड़ के आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और जैसा कि डीजी साहब ने स्वयं बताया कि हमारी एक पुस्तिका जो अब हम सभी आप सभी लोगों के समक्ष रखना चाहेंगे, मैं अनुरोध करूंगी माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी से कि वो स्वयं अपने हाथों से उसका विमोचन करें। इस पुस्तिका के बारे में जैसा सर ने बताया कि ये एक ऊर्जस्वी सुरक्षा बल के मंत्रों के बारे में बताती है और ये जो है स्वयं हमारे सीआरपीएफ के जो हमारे सदस्य हैं उन्हीं के मार्फत लिखी गई है। मिस नीतू डीआईजी सीआरपीएफ, मिस्टर एके सिंह डीआईजी सीआरपीएफ, मिस्टर अमित कुमार असिस्टेंट कमांडेंट सीआरपीएफ। आप सभी को हम बता दें कि सीआरपीएफ के 73 सालों का जो अनुभव है वो अनुभव मंत्रों के माफिक इस पुस्तिका में कैद किया गया है। एक बार जोरदार तालियां आप सभी की हो जाएं। ಆರ್ಎಎಫ್ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾರಿಂದ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು. ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬುಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿ ಆರ್ಎಎಫ್ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಬಿಎಸ್ವೈ ಕೂಡ ಸಾಥ್ ನೀಡಿದ್ರು. ಜೊತೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಕೂಡ ಸಾಥ್ ನೀಡಿದ್ರು. ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಇಲಾಖೆ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾರಿಂದ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು. ಆರ್ಎಎಫ್ನ 97ನೇ ಬೆಟಾಲಿಯನ್ಗೆ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ನೆರವೇರಿಸಲಾಗಿರೋದು ಬುಳ್ಳಾಪುರ ಬಳಿಯ ಮಿಲಿಟರಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ನಲ್ಲಿ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭದ್ರಾವತಿ ಹೊರವಲಯದ ಬುಳ್ಳಾಪುರದ ಮಿಲಿಟರಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ನಲ್ಲಿ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಬಿಎಸ್ವೈ ಕೂಡ ಭಾಗಿಯಾದರು. ಇನ್ನು ಗೃಹ ಸಚಿವ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ, ಡಿಸಿಎಂ ಅಶ್ವಥ್ ನಾರಾಯಣ್ ಹಾಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ, ಕೆಎಸ್ ಈಶ್ವರಪ್ಪ, ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ರು. ಇನ್ನು ಆರ್ಎಎಫ್ ಘಟಕ ಸ್ಥಾಪನೆ 1500 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಕರ್ನಾಟಕ ಸೇರಿ 4 ರಾಜ್ಯಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೊಳಪಡುತ್ತೆ ಈ ಆರ್ಎಎಫ್ ಘಟಕ. 50 ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಆರ್ಎಎಫ್ ಘಟಕದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಅದರ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇವತ್ತು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. I would also thank the state government of Karnataka under the leadership of Honorable Chief Minister Shri B.S. Yediyurappa ji for providing the RAF unit with adequate land and other amenities which will help in launching the facility in this town. Shri Prahlad Joshi ji, the Union Minister for Parliament Affairs, has been an important link between the Karnataka and the center. He has supported us by bringing progressive projects to this state. I take this opportunity to express my sincere thanks to him also. Shri Govind Karjol ji, the Deputy Chief Minister and State Minister for Social Welfare, for emerged as the face of the development and rapid progress in this state. His dayas and initiatives in this area of social welfare have promoted unity. And also Ashwath Narayan ji, the Deputy Chief Minister and State Minister for Higher Education, has been on the forefront for innovating businessmen and educational opportunity
to our state, sir. Shri Basraj Bommai Home Minister for our state, has played a vital role in welcoming this project to Bhadravati and accelerating it within a short span of time. I would like to take this chance and appreciate Shri K.S. Ishwarappaji, Minister of Rural Development and Panchayat Raj, who is putting his earnest effort to uphold the standard of living of the rural area. Dr. A.P. Maheshwari DG, his work has been the symbol of service and loyalty to the nation. I salute him for the bravery and his principle of keeping the nation first. Shri R.M. Meena, under his shadow of leadership, the RF unit has evolved as a strong pillar of security in our country. I applaud him for courage and dedication towards his responsibility. And also I sincerely gratitude to Sangesh MLA of this constituency, who has delivered on his commitment toward this project. ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಗಳೇ, ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆಗಮಿಸಿದಿರಿ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ನಮ್ಮ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದ ಸ್ನೇಹಿತರು ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗೌರವಿತ ಶಾಸಕರು, ನಿಗಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳು, ಪಕ್ಷದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸಂಘ ಪರಿವಾರದ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಈ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಿಂದೆ ತಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ತಾ, ಟುಡೇ I am reminded of Sardar Vallabhbhai Patel, who persuaded almost every princely state into an agreement to join India during the period of independence. His commitment to national integration in the newly independent country was uncompromising, which earned him the title Iron Man of India. Likewise, we see the outstanding success of Amit Shah ji, who unified Kashmir under the slogan "One Nation, One Flag, One Constituency." He also drove the Citizenship Amendment Act with courage, commitment, and his utmost devotion towards the nation. Along with the dealings of national challenges, our Union Home Minister has once again shown his affection and loyalty towards the people of Karnataka by giving his consent and his precious time for the installation of RAF unit in the district of Shimoga. When we talk about Shimoga, we are reminded of the perfect blend of modern technology and its rich heritage and culture. Many literature figures such as Akkama Devi, Allama Prabhu, Kuyampu have called Shimoga their home since the beginning of 12th century. The district is a gateway for the Western Ghats, the magnificent Sahyadri ranges, and extremely fertile soil. A smart city is making the city has an outstanding infrastructure of industrial roads, railways, and an upcoming airport under the initiative of B.S. Yediyurappa ji. It was the vision of Sir M. Vishweshwaraya to make this town a hub of upcoming industries. He started executing his vision in the year 1923 by starting Bhadravati Iron Steel. ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಾಯ್ ಪಟೇಲ್ ನಂತರ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ನಮಗೆ ಅಮಿತ್ ಶಾಜಿ ಅವರು ಗೃಹ ಸಚಿವರಾಗಿ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂತಹದ್ದು ನಮ್ಮ ಸೌಭಾಗ್ಯ. ಬಹುಶಃ ದೇಶದ ಉದ್ದಗಲಿಗೆ ಓಡಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಿರುವಂತ ನಮ್ಮ ಅಮಿತ್ ಶಾಜಿ ಅವರು ತಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡೋರಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರುವಂತ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಬಂಧು ಭಗಿನಿಯರಿಗೆ, ಮಾಧ್ಯಮದ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರುವ ಮುಖಂಡರಿಗೆ ಒಂದನೇ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. धन्यवाद महोदय.
कहा जाता है कि जब भी कोई शुभ कार्य किया जाता है तो उस शुभ कार्य को करने वाले का जस उस काम में जरूर लगता है। और आज हमारा ये जो भूमि पूजन और शिलान्यास समारोह ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಭದ್ರಾವತಿಯ ಬುಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿ ಆರ್ಎಎಫ್ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ನೆರವೇರಿಸಿದ್ರು. ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಬಳಿಕ ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಭಾಷಣ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಸಂಸದ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಮಾತನಾಡಿದ್ರು, ಸಿಎಂ ಬಿಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಮಾತನಾಡಿದ್ರು. ಈಗ ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ರಾಜ್ಯ ಭೇಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಮಾತನಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, क्या हो गया? आवाज अकती। दिल्ली नरेंद्र मोदी जी तक आवाज पहुंचनी चाहिए। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए और जोर से बोलिए, प्रचंड आवाज से, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और कर्नाटक के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान येदुरप्पा जी, मेरे साथ मंच पर उपस्थित कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री भाई गोविंद करजोल जी, कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री श्री अश्वत्थ नारायण जी, मेरे साथ मोदी जी की मंत्रिपरिषद में साथी और मेरे मित्र श्रीमान प्रहलाद जोशी जी, कर्नाटक के गृह मंत्री बसवराज बोम्बई जी, यहां के ही वरिष्ठ नेता और ग्रामीण विकास और पंचायती मंत्री कर्नाटक सरकार श्रीमान ईश्वरप्पा जी, यहां के लोकप्रिय और युवा सांसद श्रीमान राघवेंद्र जी, भद्रावती के विधायक संगमेश्वरा जी, और आज जिनके नेतृत्व में कार्यक्रम हो रहा है, ऐसे डीजी सीआरपीएफ डॉक्टर एपी महेश्वरी जी, सीआरपीएफ के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस श्री आरएम मीणा जी, और मैं 2.5-3 घंटा लेट होने के बाद भी इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित शिवमोगा और भद्रावती के सभी भाइयों बहनों को मैं प्रणाम करता हूं। आज मेरे लिए बड़ा हर्ष का विषय है कि सीआरपीएफ के रैपिड एक्शन फोर्स की 97वीं बटालियन का आज यहां पर शिलान्यास हुआ है। मैं गृह मंत्री बनने के बाद लगभग 2-3 महीने में ही श्रीमान येदुरप्पा जी का एक पत्र आया था कि शिवमोगा में अगर आरएएफ की स्थापना होती है तो कर्नाटक सरकार भूमि देने के लिए तैयार है और आप यहां पर आरएएफ की स्थापना करिए। मैं श्री येदुरप्पा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं गृह मंत्रालय की ओर से कि इन्होंने इनिशिएटिव लिया, हमें भूमि दी, और आज आनंद का विषय है कि उनकी उपस्थिति में यहीं पर शिलान्यास हुआ है और यहीं से ये पूरे दक्षिण भारत गोवा तक ये आरएएफ की जो बटालियन बनने जा रही है 97वीं, वो पूरे दक्षिण भारत और गोवा तक के क्षेत्र के अंदर शांति स्थापना के लिए हमेशा जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहेगी। लगभग 230 करोड़ की लागत से यहां पर जो निर्माण होने जा रहा है, लगभग 50 एकड़ भूमि कर्नाटक सरकार ने दी है और यहां पर इसके प्रशासनिक भवन भी बनेंगे, कर्मियों के निवास के केंद्र भी बनेंगे, अस्पताल भी बनेगी, केंद्रीय स्कूल भी खुलेगा
और खेलकूद के स्टेडियम भी हम यहां पर बनाने वाले हैं। मैं शिवमोगा जिले और भद्रावती के लोगों को कहना चाहता हूं कि यहां पर जो केंद्रीय स्कूल खुलेगा और जो खेलकूद के लिए, स्पोर्ट्स के लिए स्टेडियम्स बनेंगे, इसको इस तरह से डिजाइन किया जाएगा कि इसका फायदा भद्रावती की जनता भी ले सकती है और आप लोगों के लिए हमेशा खुले रहेंगे। मित्रों, आज इस शिलान्यास के साथ ही एक आरएएफ का नया अध्याय 97वीं बटालियन के रूप में यहां से जोड़ा गया है। मगर आज का दिन एक दूसरी दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि पूरा विश्व लगभग 1 साल से ज्यादा हम कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। कई लोगों की पूरी दुनिया में जाने गई है, कई लोगों को शारीरिक क्षति उठानी पड़ी है और ये कोरोना के खिलाफ जंग शायद अब तक के इतिहास में मानव जात के सबसे कठिन जंग थी। मगर मुझे कहते हुए आनंद है कि पूरे विश्व में सब जगह सब लोग अपनी अपनी तरीके से कोरोना के वायरस के खिलाफ एक जंग लड़े हैं। समग्र मानव जात ने इकट्ठा होकर अपनी शोध, अपने इनोवेशन, अपनी जितना भी ज्ञान था उसको परस्पर सहयोग से देते हुए इस जंग को लड़ा है। मगर मुझे कहते हुए आनंद है कि भारत के अंदर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कोरोना के खिलाफ सबसे सफल जंग दुनिया में अगर कहीं लड़ी गई है तो भारत में लड़ी। जब कोरोना का वायरस आया, फैलने लगा, दुनिया भर के हेल्थ क्षेत्र के अंदर काम करने वाले विद्वान चर्चा कर रहे थे कि कुछ देशों की क्या स्थिति होगी। हमारे देश का भी उसमें नाम शुमार था, क्योंकि आबादी हमारी 130 करोड़ से ज्यादा, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं था। मुझे बरोबर याद है उस वक्त सिर्फ एक लेबोरेटरी थी जो कोरोना का टेस्टिंग कर सकती थी। आज 2000 से ज्यादा लेबोरेटरी कोरोना का टेस्टिंग कर कर लोगों के लिए सुविधा कर रही है और पूरे दुनिया भर में ये चर्चा था कितनी बड़ी आबादी वाले देशों के अंदर क्या स्थिति होगी। मगर आज जब टीका भी शुरू हो गया है, तब पीछे मुड़कर देखते हैं तो विश्व के सभी आंकड़ों का अभ्यास करने से मालूम पड़ता है कि सबसे कम प्रतिशत मौतें अगर कहीं हुई है तो अपने भारत में हुई है और सबसे ज्यादा लोग अच्छे होकर अपने परिवार में गए हैं तो भारत में गए। लड़ाई जो नरेंद्र भाई के नेतृत्व में हम लड़े हैं, वो लड़ाई की सफलता का मूल मंत्र क्या है? मोदी जी का दीर्घदृष्टिपूर्ण नेतृत्व तो है ही, ऊर्जावान नेतृत्व तो है ही। राज्यों के सभी मुख्यमंत्रियों ने भी इसके अंदर बहुत अच्छे तरीके से सहयोग किया। मगर दुनिया का कोरोना के खिलाफ लड़ने का तरीका और भारत के तरीके में अंतर है, तो एक ही अंतर था। दुनिया में सरकारें कोरोना के खिलाफ लड़ी और भारत में सरकारें तो लड़ी ही मोदी जी के नेतृत्व में, इसके साथ साथ 130 करोड़ की जनता भी कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़कर यशस्वी होकर हम बाहर निकले। सबको साथ रखने का ये जो पद्धति है, सबको साथ रखने का ये जो संस्कार मोदी जी ने पूरे कर्मचारियों के अंदर भरा है, इसके कारण ही हम सफल हो गए। और मित्रों, आज हम सब भारतवासियों के लिए आनंद का विषय है कि अपने ही देश में बने हुए 2 वैक्सीनेशन के माध्यम से लड़ाई को हम अंतिम चरण में ले जाने में सफल हुए हैं। आज सुबह ही मोदी जी ने वर्चुअल तरीके से ये टीकाकरण की वैक्सीनेशन प्रोग्राम की शुरुआत करी। कर्नाटक के अंदर भी 3000 से ज्यादा सेंटर बनाए गए हैं और आज 3000 सेंटरों पर टोकन रूप से शुरुआती दिन होने के कारण 100 लोगों को टीका लगाया जाएगा। मतलब 3 लाख लोगों को आज टीका लगाया जाएगा और कल से ये गति 5 गुना और बढ़ेगी। मित्रों, भारत सरकार ने तय किया है कि सबसे पहले टीका किसको लगेगा, तो हमारे स्वास्थ्य कर्मी जो अपने जान की परवाह करे बगैर कोरोना के खिलाफ लड़ते रहे। कई लोग कोरोना ग्रसित भी हुए, कई लोगों की मृत्यु भी हुई,
मगर जान की परवाह करे बगैर लोगों की सेवा करते रहे। हमारे सुरक्षाकर्मी जिन्होंने भी फ्रंट लाइन वॉरियर की तरह इसका सामना किया, कई सारे सुरक्षा कर्मियों और राज्य के पुलिस कर्मियों ने अपनी जान गंवाई है। ढेर सारे यातायात से जुड़े हुए लोग, सफाई कर्मचारी, ये सब ने अपने जान की परवाह करे बगैर कोरोना के खिलाफ लड़ाई के अंदर बहुत बड़ा योगदान दिया है। उनका अधिकार बनता है कि सबसे पहले टीका उनको लगाया जाए। मगर कुछ लोग इसको भी वक्र दृष्टि से देखते हैं, अलग अलग गलत फहमियां फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि टीका लगाने का सबसे पहला अधिकार उन लोगों का है जिन्होंने कोरोना के खिलाफ जंग में फ्रंटलाइन वॉरियर की उपलब्धि, फ्रंटलाइन वॉरियर करके अपनी सेवाएं दी है और इसको उपलब्धि को दर्ज कराने में बड़ा योगदान दिया है। मित्रों, कर्नाटक राज्य के अंदर भी लगभग 14 लाख टीके का खुराक आ गया है। मुझे विश्वास है कर्नाटक पुलिस के भी सभी 90,000 पुलिसकर्मी और सभी स्वास्थ्य कर्मियों को जल्द ही टीका लगाया जाएगा। मित्रों, आज ये आरएएफ की हम स्थापना कर रहे हैं। 1992 में सीआरपीएफ के अंतर्गत ही रैपिड एक्शन फोर्स की स्थापना की गई। ये द्रुत गति कार्यबल द्रुत गति से जहां पर भी दंगा होता है, जहां पर भी अशांति होती है, वहां पहुंचता है और कम से कम बल प्रयोग के साथ दंगे को कंट्रोल करने की विशिष्ट तकनीक इनको सिखाई गई। इनकी एक्सपर्टी है इसमें कि दंगों को कैसे काबू में रखना है, कम से कम बल प्रयोग करते हुए, जहां तक चले टीयर गैस भी नहीं छोड़ना, फायरिंग का तो सवाल ही नहीं है। अपनी उपस्थिति से ही वो शांति स्थापित करने में बड़े सफल रहे हैं और मुझे आज कहने में कोई संकोच नहीं है कि 92 से लेकर आज तक जो आरएएफ का इतिहास है, वो जिस उद्देश्य के लिए स्थापना की गई थी, वो उद्देश्य को 100% अचीव करने में आरएएफ सफल हुआ है। और इसलिए मैं देश के गृह मंत्री के नाते रैपिड एक्शन फोर्स के सभी जवानों को, सभी अधिकारियों को और सीआरपीएफ जिसके अंतर्गत रैपिड एक्शन फोर्स काम करती है, इसके डीजी माहेश्वरी जी को भी हृदय से बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं कि 92 से शुरू की हुई यात्रा आपने सफलतापूर्वक यहां पर कर रही। मित्रों, मोदी जी की सरकार आने के बाद कानून और व्यवस्था की स्थिति पर ढेर सारा ध्यान दिया गया। वैसे तो कानून और व्यवस्था हमारे संविधान के अंदर राज्य का विषय है, मगर 2018 में 5 नई बटालियनें सीआरपीएफ की बनाने का निर्णय केंद्र सरकार ने लिया और उसको एक विशिष्ट प्रकार से ट्रेनिंग की भी अलग से व्यवस्था करने वालों का काम किया। लगभग हमने एक जो संस्था बनाई है ट्रेनिंग के लिए, और ये ट्रेनिंग की संस्था ने ढेर सारे राज्य के पुलिस कर्मियों और आर्मी के भी जवानों को इसकी स्पेशल ट्रेनिंग देने का काम किया है। चाहे पुरी की जगन्नाथ यात्रा हो, चाहे अहमदाबाद की जगन्नाथ यात्रा हो, चाहे सबरीमाला के अंदर कुंभ होता हो, चाहे इलाहाबाद के अंदर कुंभ होता हो, हरिद्वार के कुंभ होता हो, रैपिड एक्शन फोर्स का जवान अपने नीले कलर के कपड़ों के साथ खड़ा होता है तो सब महिला, बच्चे, बूढ़े सभी नागरिकों को आश्वस्तता होती है कि अब यहां पर दंगा नहीं हो सकता, यहां पर स्टैम्पेड नहीं हो सकता। और ये जो विश्वसनीयता खड़ी हुई है, एक भरोसा लोगों का कमाया है, वो रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों ने अपने कर्म के आधार पर, अपनी एक्सपर्टी के आधार पर करा है। और इसी का परिणाम है कि आरएएफ के अंदर यूएन मिशन ने भी रैपिड एक्शन फोर्स को स्पेशल निमंत्रित किया। 2006 में हमारी 125 महिला कर्मी अफ्रीका और लाइबेरिया में गई और शांति मिशन का हिस्सा बनी, और भी जवान गए। और मुझे कहते हुए गर्व है कि वहां पर भी सबसे अच्छा काम करने का सर्टिफिकेट अगर दुनिया भर में किसी को मिला तो आरएएफ के जवानों को मिला। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। सीआरपीएफ ने बहुत सारे
लोगों को जोड़ने के भी अभियान चलाए। सीआरपीएफ ने गांधी जी की 125वीं जयंती पर एक साइकिल अभियान चलाया। गांधी आश्रम से लेकर दिल्ली तक 27 मेडिकल कैंप लगाए। 87 से ज्यादा छोटे बड़े जल तालाबों का पुनरुद्धार किया और ये सारा सीआरपीएफ के तहत आरएएफ के माध्यम से किया गया। मित्रों, सीआरपीएफ हमारा सबसे बड़ा बल है। 3.5 लाख जवान इसके अंदर काम करते हैं और इसकी स्थापना हम सबको, जिसके प्रति अपार सम्मान है, ऐसे लोह पुरुष देश के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई ने 1950 में की। और जब से सीआरपीएफ की स्थापना हुई तब से लेकर आज तक, चाहे आसाम के अंदर अशांति फैली हो, चाहे कश्मीर के अंदर अशांति फैली हो, चाहे कहीं दंगा हुआ है, चाहे नॉर्थ ईस्ट के अंदर जरूरत पड़ी है, चाहे तमिलनाडु के अंदर जरूरत पड़ी है, इंसर्जेंसी के खिलाफ, नक्सलवाद और माओवाद के खिलाफ अगर लड़ना हो, बस्तर के जंगलों में जाना है, आंध्र और तेलंगाना के जंगलों में, महाराष्ट्र के जंगलों में जाना है, तो हर जगह देश की सुरक्षा के लिए सीआरपीएफ का जवान प्रथम प्राप्ति होती है। पहली पंक्ति में अगर आप किसी को देखेंगे तो सीआरपीएफ के जवान देखेंगे। मित्रों, चाहे बाढ़ आई हो, चाहे कोई बहुत बड़ा साइक्लोन आया हो, हमारे सीआरपीएफ के जवान जनता के कंधे से कंधा लगाकर रहते हैं। और आज 250 से ज्यादा बटालियन है और 3.25 लाख से ज्यादा जवानों का एक कार्यबल देश के लिए, देश की सीमाओं की सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा और देश की जनता के मनोबल को बढ़ाने के लिए हमेशा आगे बढ़ा है। और मित्रों, मुझे कहते हुए गर्व है कि जहां पर भी जान देने का, सर्वोच्च बलिदान देने का भी जरूरत पड़ा, सीआरपीएफ का जवान कभी पीछे नहीं आया। देश के रक्षा के लिए हमेशा अग्रता से गया। हम देखें तो कुल मिलाकर देश में, देश की आजादी के बाद लगभग 34,800 से ज्यादा पुलिसकर्मी और सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों ने अपने बल जान की आहुति दी। मित्रों, हम पुलिस को एक अलग दृष्टिकोण से देखते हैं। कुछ पिक्चरों के अंदर जो छवि बनी है, मगर उनके जितना कठिन जीवन शायद ही कोई जीता है। उनकी ड्यूटी के कोई घंटे नहीं होते। आप बैंक के कर्मचारी हो गए तो 10 से 5 कर 5:30 बजे आपके बच्चों के साथ, आपकी पत्नी के साथ, आपके माता पिता के साथ पहुंच सकते हो। पुलिस के जवान को छुट्टी नहीं है। रक्षाबंधन के दिन आप अपनी बहन के साथ, आप आपके भाई के साथ आराम से रक्षाबंधन का त्योहार मनाते हो, होली, दीपावली, मगर यहां पर छुट्टी नहीं। उस दिन विशेष ड्यूटी होती है उनकी। एक मैं गृह मंत्री के नाते कहना चाहता हूं कि सबसे कठिन ड्यूटी अगर कोई निभाता है सभी सरकारी कर्मचारियों में, तो वो पुलिस का जवान है। और मित्रों, ना स्वास्थ्य की चिंता, न समय पर खाना, न जरूरत जितनी शरीर को जितनी जरूरत उतनी नींद प्राप्त होना, मगर हमेशा हंसते हुए ड्यूटी पर लगे रहना। मगर हमें पुलिस को देखने के नजरिए में बदलाव लाने की जरूरत है। मित्रों, जिस बल ने आज तक 34,000 से ज्यादा जवान अपने जान का बलिदान दिया देश के लिए, उस बल को देखने का नजरिया जनता का बदलने की जरूरत है। और इसीलिए ये बदलाव के लिए मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने तब उन्होंने राष्ट्रीय पुलिस स्मारक का एक निर्माण किया। और राष्ट्रीय पुलिस स्मारक के साथ साथ अब इसको बहुत अच्छे तरीके से डेवलप किया जा रहा है। वहां पर देश भर के पुलिस कर्मियों ने जो देश के लिए काम करते करते शहादत दी है, इनके किस्सों को डिजिटाइज कर रखा गया है। इस पर फिल्म बनाई गई है और ये सभी जवानों की तिथियां, शहीदगी की और नामों का भी वहां पर एक सूची रखा है। मैं आप सबको और एक कार्यक्रम के माध्यम से कर्नाटक की सभी जनता को विनती करने आया हूं कि दिल्ली जाइए तब निश्चित रूप से राष्ट्रीय पुलिस स्मारक पर जाकर 5 मिनट हमारे जवानों को श्रद्धांजलि देने का काम आप जरूर करिए। मुझे लगता है इससे देश भर की पुलिस फोर्स की मनोबल बढ़ेगा, जनता के प्रति उनका लगाव भी बढ़ेगा और संवेदनशीलता जो जनता के प्रति उनकी है
वो और बड़ी मात्रा में बढ़ेगी। मित्रों, मेरा आप सबसे अनुरोध है कि ये जो आरएएफ यहाँ पर बन रहा है वो भी यहाँ पर एक जनता को जोड़ने का एक बहुत बड़ा साधन बन जाए। यहाँ पर खेल कूद के लिए जिले भर के बच्चे आए, अलग अलग स्पर्धाएं हो, यहाँ पिकनिक हो, यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय जो बनेगा इसका ज्यादा से ज्यादा बच्चा लाभ ले पाए, इस प्रकार की एक व्यवस्था यहाँ हो, वो तभी संभव है जब यहाँ से चुने हुए प्रतिनिधि आरएएफ के साथ संकलन कर जनता को जोड़ने का काम किया। मित्रों, मोदी जी के नेतृत्व में कानून और व्यवस्था को मजबूत करने के लिए अभी अभी ही संसद के अंदर राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी और राष्ट्रीय फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी की स्थापना की है। राष्ट्रीय फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी अपने आप में पूरी दुनिया में पहली यूनिवर्सिटी है जो फोरेंसिक साइंस पर ही विद्यार्थियों को पढ़ाएगी और इसको एक्सपर्ट कर देश के फोरेंसिक साइंस के क्षेत्र के अंदर बहुत बड़ा बदलाव लाएगी। इसी प्रकार से जो बचपन से स्वप्न देखते हैं मुझे सुरक्षा के जुड़े हुए कामों में जुड़ना है, उसके विशिष्ट ट्रेनिंग के लिए राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी बनाई है। मैं श्रीमान येदुरप्पा जी को अनुरोध करता हूं कि कर्नाटक के अंदर जल्द से जल्द ये दोनों यूनिवर्सिटी के साथ एफिलेटेड कॉलेज को शुरू करें, जिससे कर्नाटक के बच्चों को भी फोरेंसिक साइंस और राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी के क्षेत्र के अंदर एडमिशन लेकर देश के लिए कंट्रीब्यूट करने का बहुत बड़ा मौका मिल जाए। मित्रों, हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर सुधार के लिए भी बहुत सारा काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मैं थोड़ा लेट चल रहा हूं, मैं ज्यादा डिटेल नहीं बताऊंगा, मगर पूरे देश के पुलिस आधुनिकीकरण के लिए लगभग 800 करोड़ रुपए का आवंटन मोदी जी ने किया है और 19-20 में इसके अंदर 8% की बढ़ोतरी भी की है। मैं आज सीआरपीएफ और सभी केंद्रीय बलों को एक और बात के लिए भी अभिनंदन देना चाहता हूं। मित्रों, आप लोगों की ताली इसके लिए बहुत जरूरी है। हमारे केंद्रीय सुरक्षा बलों ने 1.5 करोड़ से ज्यादा वृक्षारोपण कर पर्यावरण को बचाने का एक बहुत बड़ा काम किया। 1.5 करोड़ से ज्यादा वृक्ष, और मैं आपको उनकी ओर से विश्वास दिलाता हूं कि हमने जो व्यवस्था की है, हर वृक्ष के साथ कौन सा जवान वो अटैच किया है, और अगर पौधा मरता है, पौधा फेल होता है, तो इसकी अभी से नर्सरियां बनाकर रिप्लेसमेंट की भी व्यवस्था की है। और मैं स्वयं महीने में एक बार इसको देख रहा हूं। मुझे श्रद्धा है कि जो बीज आज हमारे जवानों ने बोया है, 5 साल के अंदर एक वटवृक्ष बनकर पूरे भारत के पर्यावरण की सेवा करने के लिए बहुत आगे आएगा। मित्रों, और आरएएफ के 15 बटालियनों ने भी कई सारे शहर और गांवों के लिए एक विशेष अभियान चलाकर ये पेड़ों को बोने का काम किया है। पुलिस कर्मियों के लिए आवास योजना के तहत लगभग 3000 करोड़ की लागत से 13,000 घरों का निर्माण, 113 बैरकों का निर्माण भारत सरकार ने किया है। मैं मानता हूं आजादी के बाद सबसे ज्यादा तवज्जो इस विषय पर, पुलिस हाउसिंग सेटिस्फेक्शन रेशियो पर अगर कोई एक सरकार ने दी है तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दी है। मित्रों, हमारे सुरक्षा बल के पुलिस कल्याण भंडार, केंद्रीय पुलिस कल्याण भंडार चलते हैं। हमने एक निर्णय किया है कि केंद्रीय पुलिस कल्याण भंडार के अंदर अब से सिर्फ स्वदेशी चीजें ही मिल पाएगी, जो भारत में बना है वो ही मिल पाएगा। और मोदी जी ने जो लोकल फॉर वोकल इसका नारा दिया है, आत्मनिर्भर भारत का नारा दिया है, मित्रों, अगर 130 करोड़ भारतवासी तय कर दे तो हम इसी चीजों का उपयोग करेंगे जो भारत में बनी है, तो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, डॉलर की इकोनॉमी बनते हुए हमें कोई नहीं रोक सकता, और विश्व का सबसे बड़ा बाजार बनते हुए भी हमें कोई नहीं रोक सकता। मित्रों, उत्पादन यहां पर होना चाहिए। हमारे युवाओं को इसकी, हमारा जो कंजम्पशन है, इसका फायदा मिलना चाहिए, उनको रोजगारी मिलनी चाहिए। इसीलिए ये आत्मनिर्भर भारत का नारा दिया है। मैं आज आप सभी को भी अपील करना चाहता हूं कि मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत के नारे से आप जुड़िए और इसके साथ अपने आप को देश की एक सेवा करने का मौका भी लीजिए। मित्रों,
आरएएफ के जवान हो या सीआरपीएफ के जवान हो, हमारे सशस्त्र बलों के जवान हो, जब शहीद होते हैं तब उनके परिवारों की चिंता के लिए भारत सरकार ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है और ये उनको एक मुश्त राशि वहां पर से ही दी जाती है। इसके साथ साथ अक्षय कुमार के सहयोग से हमने भारत के वीर ट्रस्ट का भी निर्माण किया है, जिसके अंदर जनता डोनेशन देती है और 15 लाख रुपया अलग से देते हैं। तो हर जवान को शहीद होते ही जो पेंशन वगैरह मिलेगा वो तो अलग से हर महीना, परंतु इसके साथ साथ उसको एक 50 लाख से ज्यादा राशि ये दोनों मिलाकर सीधा इनके परिवारजनों के अकाउंट में पहुंचे, इस प्रकार की हमने व्यवस्था करी है। मित्रों, मैं मानता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में देश हर क्षेत्र के अंदर प्रगति कर रहा है। कोरोना जैसी विनाशक महामारी में से भी हम सफलतापूर्वक बाहर निकले हैं और आज टीकाकरण की शुरुआत हुई है। कुछ ही महीनों के अंदर ये टीकाकरण पूर्ण होगा और हमारा देश पूर्ण रूप से कोरोना महामारी से मुक्त होकर फिर से द्रुत गति से, स्पीड से, तेज गति से विकास की रोड पर दौड़ने लग जाएगा। मुझे भरोसा है मित्रों, आइए हम सब मिलकर मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत का एक स्वप्न को साकार करें और यहाँ पर जो सारे भवन बन रहे हैं, मैं आरएएफ और सीआरपीएफ को भी जवानों को कहूंगा कि ईंट और सीमेंट के बने हुए भवन कभी उद्देश्यों को सब पूरा नहीं करते हैं। भवन के अंदर जो आपकी भावना होगी वो ही उद्देश्य को पूरा करती है। तो आप भी लोगों के साथ जुड़कर, लोगों के प्रति संवेदनशीलता रखकर ये भवनों के अंदर लोग भी जुड़े, ऐसा ही यहाँ पर 97वां बटालियन हो। फिर से सभी सीआरपीएफ और आरएएफ के जवानों को मेरी अनंत अनंत शुभकामनाएं देकर मेरी बात को समाप्त करता हूं। वंदे मातरम। धन्यवाद सर। हमारे देश के गौरव के प्रति आपकी गर्जना सुनकर मैं ये कह सकती हूँ। ಬುಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿ ಆರ್ಎಎಫ್ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ನೆರವೇರಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭದ್ರಾವತಿ ಹೊರವಲಯದ ಬುಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಬಳಿಕ ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದರು. ಆರ್ಎಎಫ್ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದರೆ ಜಾಗ ನೀಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಸಿಎಂ ಬಿಎಸ್ವೈ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ರು. ನಾನು ಗೃಹ ಸಚಿವನಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಪತ್ರವನ್ನ ಸಿಎಂ ಬಿಎಸ್ವೈ ಬರೆದಿದ್ರು. ಕೊರೋನಾ ವಿರುದ್ಧದ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಯವನ್ನ ಸಾಧಿಸಿದ್ದೇವೆ. ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕೊರೋನಾವನ್ನ ನಿಭಾಯಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಕೊರೋನಾ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಸಾಧಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಭಾರತ ಕೊರೋನಾ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಮೋದಿ ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಕಾರಣದಿಂದ ಯಶಸ್ಸನ್ನ ಕಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇನ್ನು ಕೊರೋನಾ ಪೀಡಿತರು ಹೆಚ್ಚು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಗುಣಮುಖರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿಶ್ವದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ರೆ ನಾವೇ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೊರೋನಾ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ರಾಜಕೀಯ ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಚಾರ ಕೂಡ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ್ರು. ಲಸಿಕೆ ವಿರುದ್ಧ ಟೀಕಿಸಿರುವ ವಿರುದ್ಧ ಶಾ ಬೇಸರವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರು. ಭದ್ರಾವತಿಯಲ್ಲಿ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಭಾಷಣದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ್ರು. Dr. A.P. Maheshwari, presenting the memento to Shri B.S. Yedurappa, Chief Minister, Karnataka. आप सभी की तालियों के साथ अभिवादन हो जाए। साथ ही मैं डीजी साहब से अनुरोध करना चाहूंगी कि संसदीय कार्य मंत्री श्री प्रहलाद जोशी जी का भी आभार व्यक्त करें इस स्मृति चिन्ह के साथ, इस मोमेंटो के साथ। बहुत बहुत अभिनंदन आपका भी। और आज हमारे राज्य के लिए ये एक बहुत बड़ा क्षण है, गौरवान्वित क्षण है। तो हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट है वो मिलकर माननीय श्री अमित शाह जी का अभिवादन करना चाहते हैं। तो उसके लिए मैं अनुरोध करना चाहूँगी सीएम साहब श्री येदुरप्पा जी, एमपी श्री राघवेंद्र जी और डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर श्री ईश्वरप्पा जी से कि आप कृपा करके ये भेंट जो है माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को ये भेंट दें। आपका स्वागत, सत्कार और बहुत बहुत आभार शिव मोगा की इस धरती की ओर से। जोरदार तालियां हो जाएं आप सभी की।
और अब मैं अनुरोध करना चाहूँगी आईजी आरएएफ श्री राधे मोहन मीना जी, आईजी एमएस भाटिया जी और आईजी संजय लाटकर जी से कि हमारे मंच पर उपस्थित अन्य विशिष्ट अतिथियों का भी सम्मान करें। मैं चाहूंगी आप सभी की तालियों की गड़गड़ाहट यूं ही बनी रहे, क्योंकि कहा जाता है कि जब हमें एक से अनेक होना होता है तो उसके लिए नेक होना बहुत जरूरी है, और ये इस मंच की नेक नियति है कि आज हम सभी लोग यहाँ सशक्त रूप में उपस्थित हैं। जोरदार तालियां हो जाएं आप सभी की प्लीज। और अब भाइयों और बहनों, एक ऐसा क्षण जो हमेशा के लिए हमारे इतिहास में दर्ज हो जाएगा। आज हम सभी लोग यहाँ पर 97वीं द्रुत कार्य बल की जो ये हमारी वाहिनी है उसकी स्थापना के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, और वाहिनी का भवन जब बनकर तैयार होगा तो उसमें एक स्मृति हमारे जो आज के मुख्य अतिथि हैं श्री अमित शाह जी की ओर से रहेगी हमेशा के लिए, जो हमारे कार्मिकों के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा की स्रोत होगी। तो मैं अनुरोध करना चाहूंगी ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಆರ್ಎಎಫ್ ಘಟಕದ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಜನತೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ನಿಮ್ಮ ಧ್ವನಿ ದಿಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ತಲುಪಬೇಕು ಅಂತ ಭದ್ರಾವತಿಯಲ್ಲಿ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಭಾಷಣ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಜೈ ಅಂತ ಜೈಕಾರವನ್ನ ಕೂಗಿಸಿದ್ರು ಅಮಿತ್ ಶಾ. ಇನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಡವಾಗಿ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕಾಯ್ದಿದ್ದೀರಾ. ಆರ್ಎಎಫ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ನನಗೆ ಸಿಎಂ ಬಿಎಸ್ವೈ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ರು. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಭೂಮಿ ನೀಡೋದಾಗಿ ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆಯಲಾಗಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಆರ್ಎಎಫ್ ಘಟಕ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಕನಸೇನಿದೆ ಅದನ್ನು ನನಸು ಮಾಡುವಂತಹ ಕ್ಷಣ. ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ನೆರವೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಭಾಷಣದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡ್ತಾ ಆರ್ಎಎಫ್ ಘಟಕದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೂಡ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟರು. और अब मैं अनुरोध करना चाहूंगी पुलिस महानिरीक्षक द्रुत कार्यबल ಇನ್ನು ಸಿಆರ್ಪಿಎಫ್ ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಹೇಳಿದ್ರು. ದೇಶದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗೂ ಸಿಆರ್ಪಿಎಫ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಸಿಆರ್ಪಿಎಫ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಮೊದಲು ಆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಸಿಆರ್ಪಿಎಫ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಪೊಲೀಸರನ್ನು ನಾವು ಬೇರೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಆದ್ರೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಸಮಯದ ಮಿತಿಯೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಪೊಲೀಸರು ಕಠಿಣ ಕೆಲಸವನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಪೈಕಿ ಪೊಲೀಸ್ ಕೆಲಸ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣ. ಹಾಗಾಗಿ ಪೊಲೀಸರನ್ನ ನೋಡುವಂತಹ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಬದಲಾಗಬೇಕು. ದೆಹಲಿಗೆ ಹೋದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಮಾರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಮಾರಕಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಗೌರವವನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಆರ್ಎಎಫ್ ಜನರ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಬಂಧ ವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಹಕಾರಿ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಈ ಸಂದರ್ಭ. ಇನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಫಾರೆನ್ಸಿಕ್ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿವಿ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ರಕ್ಷಣಾ ವಿವಿ ಸ್ಥಾಪನೆಗೂ ಕೂಡ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು 2 ವಿವಿಗಳ ಜೊತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಸಲಹೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿ ಆರ್ಎಎಫ್ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ನೆರವೇರಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಭದ್ರಾವತಿ ಹೊರವಲಯದ ಬಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಬಳಿಕ ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದರು. ಪೊಲೀಸ್ ಕಲ್ಯಾಣ ಭಂಡಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ವದೇಶಿ ವಸ್ತುಗಳು ಲಭ್ಯ. ಆರ್ಎಎಫ್ ಯೋಧರು ಹುತಾತ್ಮರಾದಾಗ ಪರಿಹಾರವನ್ನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ 50 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಪರಿಹಾರವನ್ನ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೊರೋನಾ ವಿಚಾರವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೊರೋನಾ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಜಯ ಗಳಿಸಿದೆ. ಭಾರತ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದೆ. ವಿಶ್ವದ ಬೇರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ರೆ ಭಾರತ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕೊರೋನಾ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ವಿಚಾರವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಟೀಕಿಸುವವರ ವಿರುದ್ಧ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಬೇಸರವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರು. ಇನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಸಹಕಾರವನ್ನ ಕೂಡ ಅವರು ನೆನೆದ್ರು. ಸಿಎಂ ಬಿಎಸ್ವೈ ಪತ್ರ ಬರೆದಿರುವಂತಹ ವಿಚಾರವನ್ನ ಕೂಡ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಭದ್ರಾವತಿಯ ಬಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿ ಆರ್ಎಎಫ್ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ನೆರವೇರಿಸಿ ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಜನತೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. 97ನೇ ಆರ್ಎಎಫ್ ಬೆಟಾಲಿಯನ್ ತರಬೇತಿ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆಯನ್ನ ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು. ಭದ್ರಾವತಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಳ್ಳಾಪುರದ ಮಿಲಿಟರಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. 1500 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಆರ್ಎಎಫ್ ಘಟಕವನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. 50 ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಆರ್ಎಎಫ್ ಘಟಕ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಆ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ಅಂದ್ರೆ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆಯನ್ನ ಇವತ್ತು ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು. 39 ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಿಗುವಂತೆ ಈ ಘಟಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಸೇರಿ 4 ರಾಜ್ಯಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಡುತ್ತೆ ಈ ಘಟಕ. 97ನೇ ಆರ್ಎಎಫ್ ಬೆಟಾಲಿಯನ್ ತರಬೇತಿ ಘಟಕದ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಿ ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅಲ್ಲಿ ಜನರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.